dear students of grade 7. Hopefully you all are doing well. Today we are going to take a start to its book reading with Urdu translation. So let's get started. This is a short story which narrates by a horse whose name was a Black Beauty. Before I was 2 years old, इससे पहले जब मैं 2 साल का था, a circumstance happened which I have never forgotten. Circumstance, what does circumstance means? A particular incident or happening means एक ऐसा वाक़या और ऐसा कुछ हुआ था जो कि वो नहीं भूल पाया. It was early in the spring. वो मौसम ख़ज़ां का शुरू के दिन थे. There had been a little frost in the night. और रात में थोड़ी थोड़ी ठंड थी. Frost means icing और in Urdu you can say कोहरा. And a little mist still hung over the wet woods and meadows. Little mist, light mist means foggy weather, fog. और वहाँ पे जंगलों और चरागाहों पे धुंध का नज़ारा था. धुंध से वो घेरे हुए थे. वुड्स, अगर यहाँ पे वुड होता दैट मीन लकड़ी, लेकिन यहाँ पे है वुड्स, इट्स मीन्स जंगल. मेडोज मीन्स चरागाहें. I and other colts were feeding at the lower part of the field when we heard quite in the distance what sounded like the cry of dogs. I, who? Black Beauty. I and the other colts mean a young male horses. मैं और other बाकी जो घोड़े थे were feeding at the lower part of the field. खेत के निचले हिस्से में feeding कर रहे थे. When we heard, तभी हमने सुना quite in the distance, कुछ ही फासले से, what sounded like the cry of dogs. कुछ इस तरह की आवाज़ें थी कि डॉग्स की, cry of dogs की तरह आवाज़ें थी. The oldest of the colts raised his head. जो हम में सबसे बड़ा कॉल था उसने अपना सर उठाया. Pricked up his ears means कान खड़े किए और means सुना. And said, there are the hounds. There are the hounds means pack of dogs. There are the hounds. वहाँ पे कुत्तों का झुंड है. And immediately cantered off. वो जल्दी से वहाँ से भागे. Cantered off घोड़ों का भागना. Followed by the rest of us, हम सब ने उसको फॉलो किया. To the upper part of the field. और हम लोग खेत के ऊपर वाले हिस्से की तरफ भागे. Where we could look over the hedge and see several fields beyond. जहाँ से हम जो है ऊपर गए और वहाँ से हम लोग several fields जो है नीचे, मतलब हज़ारों खेतें नीचे देख सकते थे. My mother and old riding horse of our masters. मेरी मदर और मेरे मास्टर का जो एक ओल्ड राइडिंग हॉर्स था were also standing near. वो पास ही खड़े थे. And seemed to know all about it. ऐसा लग रहा था कि उनको सब चीज़ का पता है. They have found a hare, said my mother. मेरी मदर ने कहा कि उन्हें एक खरगोश मिला है. They have found a hare. किसको मिला है? A pack of dogs को hounds को मिला है. And if they come this way, we shall see the hunt. और अगर वो इस रास्ते पर आए तो हम शिकार देख लेंगे. And soon, जल्दी, the dogs were all tearing down the field of young wheat next to ours. और जल्दी क्या देखने को मिला कि जो डॉग्स हैं, जो हाउंड है, वो तेज़ी में भागते हुए एक खेत की तरफ आ रहे हैं. यंग वीट, जो एक नई खेत है, मतलब वीट की खेत है हमारे पास ही में, उसकी तरफ भागते हुए जा रहे हैं. I never heard such a noise as they made. मैंने इससे पहले कभी ऐसी आवाज़ नहीं सुनी जो वो निकाल रहे थे. They did not bark. वो भौंक नहीं रहे थे. Nor howl. ना वो howling कर रहे थे. Nor whine. But kept on a yo like this sound. वो मतलब उनका साउंड इस तरह का था, yo. तो at the top of their voices. और बहुत ऊंची आवाज़ थी. After them came a number of men on horseback. उनके पीछे क्या हुआ एकदम से, उसके बाद क्या हुआ कि उनके पीछे a number of men came on horseback. जो घोड़ों पे बहुत सारे आदमी आए.
सम ऑफ देम इन ग्रीन कोट्स, कुछ उनमें से ग्रीन कोट पहने हुए थे। ऑल गैलपिंग एज फास्ट एज दे कुड, सब और इस तरह से तेज़ी से भाग रहे थे जितना वो भाग सकते हैं अपने घोड़ों पे। द ओल्ड हॉर्सेस स्नॉर्टेड एंड लुक्ड ईगरली, जो बूढ़े घोड़े थे, बड़े मतलब एक तो यंग थे और ये जो ओल्ड हॉर्सेस थे बूढ़े घोड़े थे, मेच्योर हॉर्सेस थे, उन्होंने स्नॉटेड किया, खराटे लिए एंड लुक ईगरली, और बड़े गौर से देख रहे थे आफ्टर दैम, उनकी तरफ। एंड वी यंग कॉर्स, और हम जो यंग हॉर्सेस थे, wanted to be galloping with them, और हम भी उनके साथ भागना चाहते थे। बट they were soon away into the fields lower down, लेकिन वो एकदम से दूर चले गए into the fields lower down, जो कि नीचे वाले खेत थे। They have lost the scent, said the old horse, perhaps the hare will get off. उन्होंने खुशबू खो दी। They have lost the scent. Whose scent? Hare scent. They have lost the scent of hare, said the old horse. बूढ़े घोड़े ने कहा उन्होंने ये जो खरगोश की खुशबू है वो खो दी, मतलब उसको उनसे वो लॉस्ट हो गया। अब उनको उसकी खुशबू नहीं आ रही कि वो शिकार कहाँ पे गया उनका। Perhaps the hare will get off. जो खरगोश है वो बच निकला। Get off बच निकला। What hare? I said. कौन सा हेयर? मैंने कहा। Oh, I don't know what hare. मुझे नहीं पता कौन सा हेयर। Likely enough it may be one of our own hairs or out of the woods. हो सकता है क्या पता ये हमारा कोई खरगोश हो या कोई जंगली खरगोश हो। Any hare they can find will do for the dogs and men to run after. कोई भी खरगोश अगर आदमियों को या डॉग्स को मिला तो वो उनके लिए पीछे भागने के लिए काफ़ी होगा। And before long the dogs began their yo-yo again and back they came all together at full speed. अब जो है डॉग्स ने दोबारा से अपनी आवाज़ें निकालना शुरू कर दी और अपनी ही स्पीड में भागना स्टार्ट कर दिया जंगल की तरफ। Making straight for our meadows at the part where the high bank and hedge overhang the brook. उस तरफ जाना शुरू कर दिया। our meadow at the part, उस पार्ट पे जहाँ पे मतलब ऊंचाई की तरफ था, meadows की ऊंचाई की तरफ था। and hedge overhang the brook, और नदी के बाढ़, मतलब इस ऐसा एक सीन था। देखें ये ब्रोक मीन्स नदी, और ऐसे इस साइड पे ये एक मेडो का ये एक पार्ट था, हाई बैंक पार्ट था, इस साइड पे भागना शुरू कर दिया। नाउ वी शेल सी द हेयर, अब हम जो है एक खरगोश देख सकते हैं। सेड माई मदर, मेरी मदर ने कहा। हुज मदर? ब्लैक ब्यूटीज मदर, मीन्स हॉर्स मदर। एंड जस्ट देन अ हेयर वाइल्ड विथ फ्राइट रश्ड एंड मेड फॉर द वुड्स। एक जैसे ही अब हम देख सकते हैं कि एक जंगली खरगोश वहाँ से गुजरा विद फ्राइट विद फियर, मीन्स डर के साथ, और तेज़ी से जंगल की तरफ भाग गया। ऑन केम द डॉग्स, जो डॉग्स आ रहे थे उसके पीछे। दे बर्स्ट ओवर द बैंक, वो जल्दी से नदी किनारे के ऊपर से गुजरे। लीप द स्ट्रीम, नदी पार की। एंड केम डैशिंग अक्रॉस द फील्ड फॉलोड बाय द हंट्समैन। अब ये जो फील्ड है, ये नज़ारा है, इसको जल्दी जल्दी क्रॉस कर रहे थे। फॉलोड बाय अ मैन, हॉर्समैन, उनके पीछे ये घोड़े पे आदमी भी थे। 6 or 8 men लीप देयर हॉर्सेस, 6 से 8 आदमी थे जो अपने घोड़ों पे सवार थे। क्लीन ओवर क्लोज अपॉन द डॉग्स, जो कि इन डॉग्स के पीछे थे। द हेयर ट्राई टू गेट थ्रू द फेंस, अब जो हेयर था, मतलब खरगोश था, उसने एक फेंस से गुजरने की कोशिश की। फेंस जो था, जो इसको कहते हैं फेंस, इससे गुजरने की कोशिश की। इट वॉज टू थिक, वो बहुत ज़्यादा थिक और मोटा था। एंड शी टर्न शार्प राउंड टू मेक फॉर द रोड बट इट वॉज टू लेट, लेकिन वो उससे मतलब उसने उसको टर्न कर लिया, उसे क्रॉस कर लिया।
शी टर्न शार्प राउंड टू मेक फॉर द रोड बट इट वॉज टू लेट। अब उसने एक शार्प राउंड लिया, मतलब एक शार्प टर्न लिया रोड की तरफ आने के लिए, लेकिन मीन्स वो उस फेंस से निकल आई थी, बट इट वॉज टू लेट, बल्कि बहुत देर हो गई थी। द डॉग्स वर अपॉन हर विद देयर वाइल्ड क्राइज। जो डॉग्स थे वो उस तक पहुँच गए थे अपनी जो है जंगली और वहशी आवाज़ों के साथ। वी हर्ड वन श्रीक, एंड हमने एक आवाज़ सुनी, एंड दैट वाज द एंड ऑफ हर, और वो उसकी आखिरी आवाज़ थी, मतलब उसका वहाँ पे इख्तिताम हुआ, मतलब डॉग्स ने उसको पकड़ लिया था। वन ऑफ द हंट्समैन रोड अप एंड whipped ऑफ द डॉग्स। एक जो घुड़सवार था वो जल्दी से, वो तेज़ी से अपने घोड़े पर भागा, मतलब उसने अपना घोड़ा दौड़ाया, एंड whipped ऑफ द डॉग्स, और डॉग्स को मारा, मीन्स उन्हें पीछे किया। हु वुड सून हैव torn her to pieces, जो कि जल्द ही उस खरगोश को पीसेस में करने वाले थे। ही हेल्ड अप द रैबिट, उसने जो हंट्समैन था उसने रैबिट को पकड़ लिया। एंड ऑल द जेंटलमैन सीम्ड वेल प्लीज, और जो सारे जेंटलमैन थे वो वेल प्लीज नज़र आ रहे थे, खुशगवार नज़र आ रहे थे। एज़ फॉर मी, मेरे लिए, आई वॉज एस्टोनिश्ड, मैं हैरान था, दैट आई डिड नॉट एट फर्स्ट सी, मैंने पहले कभी ऐसा नज़ारा ना देखा था। वट वॉज गोइंग ऑन बाय द ब्रुक, जो नदी के किनारे ये नज़ारा मुझे देखने को मिला। बट व्हेन आई डिड लुक, लेकिन जब मैंने देखा, देयर वॉज अ सैड साइड, वहाँ पे एक गमगीन नज़ारा जब मैंने देखा। टू फाइन हॉर्सेस वर डाउन, जो कि दो घोड़े थे वो नीचे गिरे हुए थे। वन वॉज स्ट्रगलिंग इन द स्ट्रीम, जो कि एक नदी में गिरा हुआ था, नदी के अंदर गिर गया था। एंड द अदर वॉज ग्रोनिंग ऑन द ग्रास, और जो कि दूसरा जो था वो ग्रास के ऊपर पड़ा हुआ था। वन ऑफ द राइडर्स वॉज गेटिंग आउट ऑफ द कवर्ड विद मड, द अदर लेक क्वाइट स्टिल। अब जो नदी में जो घोड़ा गिर गया था उसका जो हंट्समैन था वो जो था बाहर आ रहा था वाटर से, कवर्ड विद मड, सारी वो मड से कवर्ड था। द अदर लेक क्वाइट स्टिल, लेकिन जो दूसरा ग्रास पे जिसका घोड़ा गिर गया था वो वैसे ही वहाँ पे उसी तरह से स्टिल पड़ा हुआ था। हिज नेक इज़ ब्रोकन, उसकी जो नेक थी वो टूट गई थी। सेड माई मदर, मेरी मदर ने कहा। एंड सर्व्स हिम राइट टू, सेड वन ऑफ द कॉर्ट्स। अब एक कॉर्ट ने क्या कहा कि सर्व्स हिम राइट टू, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। आई थॉट द सेम, मैंने भी यही सोचा, बट माई मदर डिड नॉट ज्वाइन विद अस, लेकिन मेरी जो अम्मी थी उन्होंने हमारे साथ इत्तेफाक नहीं किया। वेल नो, नहीं, शी सेड, उन्होंने कहा। यू मस्ट नॉट से दैट, तो मैं ऐसा नहीं कहना चाहिए। बट तो आई एम एन ओल्ड हॉर्स, लेकिन मैं एक बूढ़ी घोड़ी हूँ। एंड हैव सीन एंड हर्ड अ ग्रेट डील, ना मैंने ऐसा देखा ना सुना। आई नेवर येट कुड मेक आउट वाई मैन आर सो फाउंड ऑफ दिस स्पोर्ट, और ना मैं कभी समझ सकी कि ये जो मैन है, मीन्स आदमी है, अपने इस शौक़ को, अपने इस खेल को इतने शौकीन हैं इस खेल के। दे ऑफन हर्ट दैमसेल्फ, और अक्सर अपने आप को भी नुकसान पहुंचाते हैं। ऑफन स्पॉइल गुड हॉर्सेस, और अच्छे घोड़ों को भी ख़राब करते हैं। एंड टीयर अप द फील्ड्स, और जो खेते हैं उन्हें भी बिगाड़ देते हैं। एंड ऑल फॉर a hare or fox, or that they could more easily some other way, सिर्फ एक खरगोश के लिए, फॉक्स के लिए, या तो डियर के लिए, हिरन के लिए। that they could get more easily some other way, जो कि ये किसी और तरह भी आसानी से हासिल कर सकते हैं। but we are ओनली हॉर्सेस एंड डोंट नो, लेकिन हम सिर्फ हॉर्सेस हैं और हमें नहीं पता। अब यहाँ पे इस लाइन में इसका देखें एक मतलब है, वी आर ओनली हॉर्सेस मीन्स हम जस्ट एनिमल्स हैं, हमें नहीं पता कि ह्यूमन साइकिल क्या है, वो ऐसा क्यों करते हैं। सो दिस इज़ piece of literature in which we have read all about the horses and the hunts of human.
सो ये एक सिर्फ लिटरेचर पीस नहीं है, इसमें हमें एक मैसेज दिया गया, एक चीज़ कन्वे की गई है कि इंसान जो है ये हंट जो शिकार करते हैं उससे कितना नुकसान भी होता है। इट इज़ अ ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन टूवर्ड्स एनिमल्स। वो एनिमल्स को किस तरह से ट्रीट करते हैं, वो किस तरह से ख़ुद भी हर्ट होते हैं और एनिमल्स को भी परेशान करते हैं, कितने लोग इससे परेशानी का बायस बनते हैं। सो दिस इज़ अ ग्रेट piece by Anna Sewell. So hopefully you have understand this one. Thank you.